let me introduce ये नितिश भाई हैं, who is taking care of North for Danube Danube group, right? North में जितना भी हम डायरेक्टली इनसे ही टच में हैं, एंड हमने पहले कुछ इवेंट्स भी करे हैं नितिश भाई के साथ, एंड टचवुड हमने खुद से एक सेल्स भी करी है, राइट? और कंचन इज, आई बिलीव शी इज एसोसिएट विद Danube only, and she'll take care of the Yes. today's training. So Kanchan, I have a small request, because most of the people are recently joined, right? And they don't know anything about Dubai. So what I need, we need to something about the location, proper briefing about Dubai, like what are the main locations, कहाँ से कौन सी roads आ रही हैं, कहाँ जा रही हैं, right? And then we'll go to the product, right? Done. Done. Thank you, Kanchan. Please, So, we can start. can we start? Yeah, please, we can start. Yeah, so hi team, I am Kanchan from Danube Properties, and we are here to, gain some knowledge about Dubai, Danube Properties, and how we can sell, and in which all locations we have our projects, and how Dubai looks alike. So let's see step by step. I'll start it with, introduction with the locations through the map. Let's have a look on that. Is it visible to all? Yes. Yes. Okay. So team, this is Dubai. Dubai अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है. अगर हम इंडिया से बात करें तो 30-35 किलोमीटर्स का ही एरिया है जो दुबई में आता है. ठीक है. So सबसे पहले ये जो हम ऊपर वाला एक डार्क लाइन देख पा रहे हैं, this is a Sheikh Zayed Road. Okay. The second blue line, if we are able to see, just let me know in between if I'm audible or not. Okay. Yeah, So I'll sure, Kanchan. because I cannot see you guys now. It was a request. I believe you can switch on your videos. It will be more convenient for Kanchan as well, and everyone else. Yeah. So this is the Sheikh Zayed Road. First one, the first line. This is the hub line of Dubai. All tourists, all travels goes through this highway only. Okay. And this is the Mohammed bin Sheikh Zayed Road. The second, this darker line, if we can see here. So ये दो हाईवेज हैं जो पूरा रन करते हैं, और इसी के बीच में आगे पीछे ये दुबई है. ओके. बीच में we can see this one darker line. This is Al Khail Road. Okay, this is mostly the people who are residential. They uses this road, okay, to get connected with both the highways. And both highways have a toll tax, and this Al Khail Road doesn't have any toll tax as of now. If we able to see this here, it is Dubai International Airport, and on the right opposite, it's Al Maktoum International Airport. So अभी जितनी भी हमारी flights है, they get landed at Dubai International Airport, and the last corner, which is this Al Maktoum International Airport, ये अभी बन रहा है, and it is coming up and gonna be the main airport for the other flights. And Dubai International Airport is gonna be only for the Emirates flights. So these all numbers which we can see here, these are the projects of Danube Properties. These numbers are these, okay? जितने हमारे projects आ गए हैं, और so like अभी हम counting में अगर बात करें तो we have already introduced 28 projects till date, जिसमें से 15 has been already hand over. तो ये locations हैं. अगर हम prime locations की बात करें, oceans हम यहाँ पे देख पा रहे हैं. Oceans वाला ये पूरा area is called Maritime. हमारा यहाँ पे project था which has given 360-degree water view. इसी के नीचे हम अगर देख पा रहे हैं ये वाला टार, this is a Burj Khalifa. So this area is a business bay area, and this one is a downtown area. So our project is, this number is business bay project with the name Bays. हमारा अभी latest project भी आया था Bays 101. So like 2 projects are here. और ये हम सेंटर में बहुत सारे नंबर्स देख पा रहे हैं. So this is called a center of Dubai.
Okay, JVC comes as a central location. So this is Jumeirah Village Circle. Arjan में हमारे कुछ projects हैं. This 26 number, if we able to see, this is a sports city. जहाँ पे Dubai has only one, cricket stadium and all, and every sports equipment or sports related things are available in this area. Okay, so this is again Al Furzan. और अभी हमारा जो नया project है, जो latest project which has been, launched today itself, which is going to be launched today, is coming here, JLT, which is very near to the Sheikh Zayed Road. Sheikh Zayed Road का facing है. इसके opposite में हम देख पाएंगे very near is Palm Jumeirah. और ये sorry, एक ये water body हम देख पा रहे होंगे. This is Marina. Okay, so इस project की demand जो है वो काफी ज्यादा है because of this location. Right. Okay, और अगर हम rental की बात करें इस location में हमें rental भी अच्छा आएगा 9 to 10% and gonna be more than that, but we are still committing 9 to 10% only to the clients. And appreciation की बात करें, so project can give us an appreciation of 5 to 6% per annum. So anything do we have to ask in this map? I believe there is one another road is called Emirates Road. So that is not mentioned here. No, actually हमारा उसके पास project नहीं है ना. अच्छा. So वो यहाँ पे पीछे आ जाता है. These are the Emirates Road. ये जो last में है ना, if we can see a thin line. Right. हमने ये वाला मैप जो है ये स्पेशली फॉर डेन्यूब के प्रोजेक्ट्स को हाईलाइट करने के लिए है. So we have shown like the darker lines where our projects are. So this is our Danube Properties head office, bang on the Sheikh Zayed Road. So any question about the location or something like? Perfect way. Okay, Perfect. cool. So I believe we can go towards project. What is the Yeah, exact project we're coming up? Yes, sir. How many kilometers of radius total Dubai is? You meant to say 34 kilometers something most likely. Somewhere around 25 to 30 kilometers only. So including Emirates or only Dubai? Only Dubai. Okay, got it. So can we check on the project Diamond? Yeah, please. Yeah. Okay, so this is our project, okay? Diamonds, as the name says, it is gonna be a premium project. Uptown JLT, which I have showed on the map. Uptown JLT, here. Okay. If we just have a look at the tower, it is gonna be like this. So why दुबई पे एक बार हम प्रोजेक्ट पे आने से पहले एक बार why दुबई समझ Sure, लें कि sure. बिकॉज हमारे पास इंडिया में वैसे ही ऑलरेडी बहुत सारे ऑप्शंस हैं. सो आज की डेट में हम दुबई को क्यों प्रेफरेंस दे रहे हैं, मोस्ट ऑफ क्लाइंटेज क्यों दुबई जा रहा है, क्या रीजन है उसके, वो क्लियर होना जरूरी है. Sure. तभी हम आगे प्रोजेक्ट पे आएंगे. So Okay. एक बार वाइड So हमने ये वाला बिल्डिंग देख लिया. ये जो सेंटर में डायमंड्स का ये सब हमें दिख रहा है, this is a elevator area. Okay, so it is gonna be of 62 floor story tower, like 2 towers are there. And let's discuss about why Dubai people are preferring these days. So Dubai is tax free, we all know that. Yeah, Dubai has the strongest RERA. Dubai gives you freedom, and Dubai gives you safety of your money which you are investing there. आपका जितना पैसा प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं वो सब रेरा एंड दुबई लैंड डिपार्टमेंट के थ्रू रेगुलेट होता है. So developers, whosoever developers wants to bring their projects there, so they get connected with DLD and RERA. Okay, so there is a strong, look after all the projects by the DLD team, Dubai Land Department. So sub escrow account and all, everything is strong. Rules and regulation हमें पता ही है दुबई में are very strong. Safety measures, if we see, Dubai is the safest city in the world.
they claim there is no crime. Okay, so दुबई में जो भी हमारा जहाँ पे भी हम लोग अपना प्रोजेक्ट लेते हैं या फिर जहाँ पे भी we do investments, we get a good rental. We are gonna get a good appreciation on that because it is being decided for the area wise by the DLD and RERA only. That is why, to increase more and more clientele throughout the world. Okay, so these are the few things about Dubai. But Dubai में तो बहुत सारे developers हैं. Why we have to, sell Danube only? So Danube, अगर हम बात करें, so Danube gives you a security. Danube is the only developer who has availability in India. We have our offices in Delhi, we have our offices in Mumbai, Ahmedabad, Kochi. तो आपके जो clients हैं, they can come to our office. Because अगर हम Indian mentality की बात करें, तो जब तक वो एक property dealer के office में नहीं बैठते, they don't feel comfortable investing their money. Yeah. So here you get that assurance that yes, you are buying और आपको हर चीज के लिए दुबई नहीं जाना. We have a good full-fledged team here. We have an, associated RM here, like Nitish ji is gonna help you with everything you are going to book. You are going to, claim from the developers team, your commissions and everything. So those all safety, you are getting it from in like your own city only. Second thing, the main USP of our is payment plan. So our payment plan says you have good like 6.5 to 7 years to make your payments. How you are going to make payments? अगर हम यहाँ पे भी देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे लिखा है 75 months payment plan हमें मिलता है. You are paying only like a token amount of 25,000 to book your unit. And in 10-15 days, the first installment you have to complete, which is a 10% installment, and Dubai gives you a safety. वो आपका first payment पे ही आपका registration करता है. So registration will be with 4% of registration fees. So आपने first installment दिया 10%, then इसी के साथ आपकी registry हो गई by paying 4%. Then 1 month you don't have to give anything. Another month, like third month, you again will be paying 10% of your property value. And then fourth month, again, there is nothing. And fifth month onwards, it is 1% every month you are going to pay. So, अगर हम बहुत major उसमें बात करें, तो only 20% is the biggest amount you have paid. 1% करके आपको 3 years में you have to complete like 70% of your payment. And after possession, also you will get 3 years to complete your 30%. So 30 installments आपको देनी है by doing 1% each. And starting में जो आपने possession तक आपको 70% देना है, उसमें 2 booster payments आ जाते हैं. It is just you have to complete that, 75%. 70%. So we give an elaborated payment plan. We give you fully furnished, ultra luxurious apartments, 40 plus amenities Danube देता है. Danube का existence है यहाँ पे. We give you, assigned RMs and safety of your money and of your clients. So you can easily and satisfactory, you can sell these to your clients, and our property starts from 1.1. It depends on the area. So competition में अगर हम देखा जाए, we are in top 3. और अगर हम competition में बात करें, तो हमारे जो prices होते हैं वो बहुत competitive होते हैं. इसका reason क्या है? Reason यही है कि we have our in-house contracting team. We have our in-house furnishing team with Casa Milano. We have our in-house, furnishings team, furnitures team. We have our own social media. So सब कुछ हमारा in-house है. उससे क्या फर्क पड़ता है कि आपका जो भी outsource होने वाली चीजें होती हैं वो कम हो जाती हैं और आपके prices competitive हो जाते हैं. That is why we are giving this 1% payment plan for good 6.5 years,
and our payment plan doesn't have any hidden charges. So it gives a leverage to a client that he can give his money in a good tenure, and if like approximately 65-75% maybe, you can start your earnings as well. Okay, आपने पूरा पैसा भी नहीं दिया है और आपके earnings भी शुरू हो गए. And our all, apartments are fully furnished at the time of pre-launch. स्टूडियोज की बात करें, स्टूडियो होता है लगभग 350-450 रुपए का यूनिट, स्क्वायर फीट का यूनिट, which is starting in this particular project from 1.1 million dirhams and goes up till 1.2 million dirhams. और दुबई में जितना higher floor we are opting for ourselves is gonna be expensive. We'll add some amount to it. So this is for the lowest floor and this is for the highest floor. So the starting ticket size is close to 2.5 crores Yes, for this project. for this project. Because this is bang on the Sheikh Zayed Road. If we able to see, this is a Sheikh Zayed Road. It is gonna be here. So it is, near to the highway. It is, near to the, it is giving you good USPs of like water view bhi hai yahan se. So it is a premium project, but still Ma'am, it is starting with a from the- competitive price. Ma'am, what is the distance from airport? Can you let me know? Sure, I'll do that. We'll come on that. So presidential studios, if the name adds a presidential with the name, presidential means like private pool wale units. So these are 1.3 to 1.4. 1 BHK are starting from 1.7 and goes up till 1.9. Presidential suites, again, 1 BHK with private pools are starting from 2.1, goes till 2.2. 2 BHK plus pool at 2.5, goes up till 2.8. 3 BHK, like 2 BHK, 3 BHK, 4 BHKs are with pool only. Now what is the USP like for this particular project? So the all sports equipment are gonna be from the Being Strong brand, which is being owned by Mr. Salman Khan. So it is already adding on to a, attraction for all the clients. So let's have a look on this video. ब्रांड है. अब ये ब्रांड बीइंग स्ट्रांग आपको दिखाई देगा इन डायमंड्स बाय दैन वहां पर. Yeah, there is something about being strong. वो जो इक्विपमेंट मेरे पास अभी भी है, मैं उसे रोज यूज करता हूँ. So I think it's fantastic. और बहुत सारे जिम्स ने इक्विपमेंट लिया है, बहुत सारे दोस्तों ने ये इक्विपमेंट लिया है, बहुत सारे. Let's talk about the configuration. Let's talk about the configuration of this project. You were asking कि ये कितना दूर है airport से. So it is like 2 minutes connectivity from metro station, 11 minutes to Palm Jumeirah, 20 minutes Dubai Mall, and 28 minutes to Dubai International Airport and Al Maktoum International Airport. So if we talk about the elevation of this project, hi, am I audible, right? Right. Yeah. So if we talk about the elevation of this project, it has 3 basements, then ground, basements, 3 basements, ground, mechanical floors, 62 floors, roof. Parking floors are mechanical and 1 to 11. Residential floors are starting from 12th and goes up till 60. And the rest of the floors are amenities level, which are 12th, 61st, 62 and rooftop.
Prices we have already checked. Nitish will share all these details with you. USPs, as we have already discussed for this, the location is prime, fully furnished and white goods, being strong fitness equipment now at Diamonds, brand of Mr. Salman Khan. Class and happening elevation, the one which we have shown in, which is connecting these two towers, that's the elevator area. 1% payment plan, 70% post handover, pre-handover, and 30% post handover payment plan. Completion for this project will be in November 2027. And we have already started collecting the EOIs for same. So EOI says expression of interest. The person who wants to book their unit in this particular unit, since Dubai में सबसे जल्दी studios and 1 BHK sold out हो जाते हैं. So studios in 1 BHK की demand सबसे ज़्यादा होती है. So those will be given to the people who are, sending their EOIs prior. और अभी EOI के time पे what all are the benefits you get? During EOI, you will get fully furnished apartment, first preference to choose an inventory, pre-launch price, and better ROI. And the better appreciation also, because you'll get the appreciation from the first day of the project only. Ma'am, what is the difference in the launch price and pre-launch price? थोड़ा सा जो appreciate होता जाता है ना, prices change हो जाते हैं. For example, approximate. No, can't say that, because that's been taken care by the team and the DLD. Okay. So now from here, Mr. Nitish will take it forward. तो कुछ भाई क्वेश्चनिंग हो इसमें, कोई भी अगर इशू हो किसी भी चीज से लेकर, अगर आपको कोई क्वेश्चंस हो तो आप पूछ सकते हैं प्लीज. अनूप भाई, प्रोजेक्ट से लेके लोकेशन से लेके. अनूप भाई, I हाँ। believe you have a question, please. हाँ नीतीश जी, ये जो प्रेसिडेंशियल सूट है, इसमें पूल का साइज क्या रहेगा और इसका ओवरऑल साइज क्या रहने वाला है? इसका जो प्रेसिडेंशियल सूट का साइज है वो अप्रोक्स 900 to 1000 रहेगा, डिपेंड ऑन फ्लोर, डिपेंड ऑन लेआउट. सो 9 to 1000 के आसपास आप मान के चलें विद प्राइवेट पूल. एंड व्हाट अबाउट स्टूडियो, प्रेसिडेंशियल स्टूडियो? प्रेसिडेंशियल स्टूडियो साइज इज 450 to 500. ओके, थैंक यू सो मच. जी. Floor plans already आ गए हैं, and I हाँ, believe floor- सबको group पे share किए गए. If you जी. want to check, we can showcase here as well. There's no challenge. और किसी के कोई क्वेश्चंस, मतलब आप ऑलरेडी नए हैं, सो ऑब्वियस है कि जब आप काम करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जिसके लिए मैं अवेलेबल हूँ ग्रुप पे. बट एज पर नाउ ट्रेनिंग से आपको कुछ, अगर कोई भी कोई क्वेश्चनिंग हो, कोई आप ऐसा क्वेश्चन दुबई को लेके, क्योंकि मैं पिछले 2.5 सालों से दुबई कर रहा हूँ, डेन्यू में ही हूँ मैं पिछले 2.5 सालों से. सो अगर आपका कोई ऐसा डाउट हो कि यार मतलब कैसे सेल हो रहा है, किस तरीके का क्लाइंट है, कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं मुझसे. तो कोई क्लाइंट अगर दुबई में होगा, हेलो, जी 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 कोई दुबई में होगा, नहीं तो अब्रॉड में कहीं और होगा, जी. अगर वो लोग अब मैं पूरा जो भी है हमारा जो नॉलेज आप बताए सो पूरा बताते हैं. जी. फिर वो लोग अगर देखना चाहे तो, नहीं तो अगर ऐसा कोई जूम मीटिंग आप फिर से अरेंज कर सकते हैं, तो बिल्कुल वो 100%. सपोर्ट कितना कहाँ तक होता कि वो, तो अगर वो लोग दुबई में है, दुबई में अगर डायरेक्ट हो गए तो वो किस So- तरह सपोर्ट आपसे मिलेगा. और जो अगर वो लोग देखना चाहे तो दुबई वाले, सो अगर जो दुबई में अवेलेबल है तो उसमें लोकल फेयर हम अरेंज करते हैं. क्लाइंट को लोकेशन से पिक करना, लोकेशन दिखाना, वापस ड्रॉप आउट करना, पूरी प्रेजेंटेशन देना, अगर दुबई में क्लाइंट है. और अगर आप कहें कि इंडिया या आउट ऑफ कंट्री से कोई क्लाइंट जा रहा है तो दुबई में प्रेजेंस जरूरी है. हम दुबई से असिस्ट करते हैं, आउट ऑफ कंट्री नहीं करते. मतलब दुबई से असिस्टेंस मिल जाएगी क्लाइंट को हमारे राइट से. राइट सर, थैंक यू वेरी मच, सुपर सर.
एंड वन मोर थिंग, एंड अगर जूम कॉल में नहीं तो ऐसा मीटिंग अरेंज कर सकते हैं क्या? 110%। राइट। बस आप एक दिन पहले बता दें, क्योंकि जी। मेरी बहुत मीटिंग्स अलाइन रहती हैं, तो आप एक दिन यस पहले यस बता दें कि यस नीतीश फॉर एग्जांपल कल 12-2 जो भी टाइम आप फिक्स करें, जी सो मैं जी अवेलेबल रहूंगा उस टाइम पर। श्योर सर, थैंक यू। योर गुड नेम सर? माय नेम इज नीतीश भारद्वाज। नीतीश। जी। थैंक यू सर, साउंड्स गुड। और अमित भाई कोई क्वेश्चन हो? ये स्टूडियो का और 1 BHK का इन्वेंट्री कितना है अभी हमारे पास? अभी 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 प्लस पॉइंट यही है, बिकॉज डेन्यूब में हमारे पास इन्वेंट्री होती नहीं है। अमित भाई जानते हैं इस बारे में, लेकिन प्लस पॉइंट ये है कि अभी ये सॉफ्ट लॉन्च है, अभी हमारे पास सब कुछ है, अभी इन्वेंट्री ओपन होने वाली है। सो अभी अभी सिर्फ हम ईओआई ले रहे हैं, सो अपने पास बेचने को अभी बहुत है, कोई Okay. टेंशन नहीं तो है। नंबर ऑफ जी। यूनिट्स, अभी- एक्चुअली क्वेश्चन इज कि नंबर ऑफ यूनिट टोटल कितनी है? 1219 1219 1219। इसमें तो सारे ये मतलब यूनिट सारे मिला के? जी 550 के आसपास, 550 के आसपास स्टूडियो है। ओके। जी। नितिश जी, इसमें रीसेल का कैसे रहता है? क्योंकि अभी गुरुग्राम में ना काफी क्लाइंट्स ऐसे हैं जिनका बेसिकली रीसेल का ही सीन रहता है, जी तो रीसेल कितना का इजी है? देखिए, असिस्टेंस क्या मिलेगा उसमें हमें? देखिए आफ्टर 30% आप सेल कर सकते हैं, बिकॉज 10% के बाद आपकी रजिस्ट्री हो जाती है, 4% आप डीएलडी को देते हैं। सो Okay. बिल्डर आपको आफ्टर 30% अलाउ करता है सेल के लिए। जैसे क्योंकि मैं गुड़गांव में, मेरे जितने चैनल पार्टनर है बड़े सब गुड़गांव में ही है। सो रीसेल का ऐसा है कि 30% लगभग 11 महीने 10 महीने के अंदर कंप्लीट हो जाते हैं। फिर हमारे थ्रू, हमारी खुद की रीसेल टीम है, हमारी इनोवा करके खुद की डेन्यूब की टीम है। हमारे पास नंबर ऑफ चैनल पार्टनर्स हैं, जैसे रिमैक्स हमारा बहुत बड़ा चैनल पार्टनर है, ऐसे कई चैनल पार्टनर है उनके थ्रू। बाकी दुबई रेस्ट, प्रॉपर्टी फाइंडर, बयूत, कस्टमर खुद भी सेल कर सकता है। सो बहुत रीसेल मार्केट भी दुबई में लाइक गुड़गांव है, कि आज आपने खरीदा, एक साल रखा, 6 महीने रखे, 11 मंथ्स रखे और बेच दिया, तो अच्छा खासा मार्जिन आप ले सकते हैं। तो अप्रोक्सीमेट 1 ईयर में कितना इंक्रीज आया था पर स्क्वायर 17 से 18% मान के चले, और किसी किसी प्रोजेक्ट में 24% भी आया। फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं, हमारा ओशियंस जब प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था, ओशियंस 1, सो उसकी प्राइसिंग में और ओशियंस 3 की प्राइसिंग में 15% का डिफरेंस था विद इन 25 डेज। और अगर शायद अमित भाई व्यूज के टाइम पे हमसे मिले हैं, शायद हम अमित भाई है ना, तो व्यूज 1 में जो प्राइसिंग हमने लिखी थी, व्यूज 1 की भी सेम लोकेशन थी, जेएलटी जुमेरह लेक टावर। सो जब हमने व्यूज 1 लॉन्च करा और व्यूज 2 लॉन्च करा, विद इन 15 डेज का डिफरेंस था, प्राइसिंग 8 to 10% इंक्रीज थे। सो वही है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, सो वही बेनिफिट कमाता है। सो जेएलटी थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ, जेएलटी लाइक अ सीपी, सीपी से आप कंपेयर कर सकते हो जेएलटी को, क्योंकि दुबई मरीना की बहुत डिमांड है। दुबई मरीना और जेवीआर की बहुत डिमांड है, जेएलटी की बहुत डिमांड है। दुबई मरीना में और जेएलटी में सिर्फ एक शेख जायद रोड का डिफरेंस है, एक रोड के बाद आप जेएलटी में कम हो मतलब आ जाते हैं। मेट्रो स्टेशन बिल्कुल आपके 3 to 4 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस है, डीएमसीसी मेट्रो स्टेशन, ठीक है। सो जेएलटी में प्लॉट है नहीं, और जेएलटी की टेरिटरी की बात करेंगे तो ज्यादातर यूरोपियन टेरिटरी है वहां पर, या एलिट वर्किंग प्रोफाइल है। सो वहां बहुत जल्दी रीसेल, बहुत जल्दी रेंटल लीजिंग अगर आप सिंपल रेंटल पे भी देते हैं तो 9 से 10% का है, वही अगर आप एयरबीएनबी या शॉर्ट टर्म रेंटल पे देते हैं तो 13% के रिटर्न है वहां से। सो जेएलटी लाइक अ क्रीम। नितिश भाई, अभी तक तो हम इन्वेस्टर की बात कर रहे थे, जी एक पर्सपेक्टिव से अगर हम लेते हैं इस प्रोजेक्ट्स को जी खास, तो क्या ऐसा फ्यूचर देखते हैं बेसिकली एंड यूजर के फैसिलिटीज देखिए, आसपास? अगर मतलब आप किस चीज के लिए कह रहे हैं, मतलब लिविंग के पॉइंट ऑफ व्यू भाई से? अगर थोड़ा मैं आपको इस पर अपडेट देता हूँ। सो बेसिकली ये मेन शेख जायद रोड की प्रॉपर्टी है, राइट। शेख जायद रोड दुबई की स्पाइन है, सब Right. कुछ ऑलरेडी, No सब कुछ डेवलप्ड है, मेट्रो स्टेशन ऑलरेडी कनेक्टेड हैं, सब कुछ ऑलरेडी चल रहा है। और ये जो प्रोडक्ट है बिल्कुल बैंग ऑन शेख जायद रोड के से नियर बाई है, वहीं पे 2-3 मिनट में, जैसे नीतीश भाई ने बताया कि 3 मिनट 4 मिनट के वॉक पे मेट्रो स्टेशन भी है। तो वो सराउंडिंग ना कोई अपकमिंग सराउंडिंग नहीं है, ऑलरेडी डेवलप्ड लोकेशन। तो एज अ एंड यूजर उसको डे 1 सब कुछ मिलता है। हाँ, बस फ्लैट नहीं मिलता, क्योंकि फ्लैट बनने में 3 साल लगेंगे, 4 साल लगेंगे, बट बाकी सब चीजें आज अवेलेबल है उस लोकेशन पे। बेसिकली जैसे विंस्टन में स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, उसकी बात कर रहा था कि हाँ जी वो भाई, सब मतलब अवेलेबल है, सब ऑलरेडी डेवलप शेख कम्युनिटी जायद है। रोड पूरा डेवलप्ड लोकेशन है, मतलब हर वो चीज। इस
इस लोकेशन के आसपास की बात कर रहा उस लोकेशन का भाई, JLT इज ऑलरेडी डेवलप्ड विदिन लोकेशन। 3 to 5 किलोमीटर सब कुछ है, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, मॉल्स, ईच एंड एवरीथिंग। हूँ। डन सर, डन। यस यस। Sir, how much is the total extent of the land, sir? 2.5 acres. Yeah. And if someone buys from India, he wants to have the residential visa or something, if he wants to live in there itself after the portion, is there any possibility, such possibility is there? Yes, yes. If anybody can invest 7,50,000 dirham, अगर कोई भी 7.5 लाख दिरहम से ऊपर की इन्वेस्टमेंट करता है दुबई में, सो ही कैन गेट रेजिडेंशियल वीजा और इन्वेस्टर वीजा। ठीक है, सो वो स्पॉन्सर कर सकते हैं अपने हस्बैंड अपनी वाइफ को और 3 माइनर चिल्ड्रन को। सो हर 2 इयर्स में रिन्यूअल होगा। और अगर प्रॉपर्टी की कॉस्ट 2 मिलियन से ऊपर क्रॉस होती है या 2 मिलियन की इन्वेस्टमेंट होती है, सो ही कैन गेट गोल्डन वीजा। सो गोल्डन वीजा के बहुत एडवांटेज है। आप अपने नंबर ऑफ ब्लड रिलेशन में उसको स्पॉन्सर कर सकते हैं, अपने सर्वेंट, नैनी और ड्राइवर को स्पॉन्सर कर सकते हैं। आपको फॉर एग्जांपल मैं इंडियन सिटीजन हूं, अमित भाई इंडियन सिटीजन है, अमित भाई के पास गोल्डन वीजा है, मेरे पास नहीं है। सो अगर उनके पास गोल्डन वीजा है, अगर उनको लोन चाहिए वहां से, तो इनको 6%, मेरे को 6% मिलेगा, इनको 4% के आसपास का मिलेगा। मेरे आज की डेट में अगर आप दुबई की बात करें तो ऑलरेडी 30% यूनिवर्सिटीज ऑल ओवर वर्ल्ड से आ चुकी है। सो आप ये मान के चलें, अगर मेरे बच्चे की फीस 20 लाख रुपए है, सो अमित भाई की फीस बच्चे की फीस 12 to 13 लाख रुपीज है, तो रिबेट मिलती है। सो 2 तरीके के वीजा है, आप इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्योंकि क्लाइंट पूछता है। 7,50,000 दिरहम में रेजिडेंशियल वीजा और इन्वेस्टर वीजा, एंड 2 मिलियन दिरहम पे गोल्डन वीजा। In terms of rupees, sir, how much money it should be? रुपीज 1 करोड़ 60 लाख से ऊपर रेजिडेंशियल वीजा, और अप्रोक्स 5 CR के अप्रोक्स गोल्डन वीजा। Okay, got it. Thank you. जी। मैं थोड़ा सा Residential- लोकेशन, मैं थोड़ा लोकेशन पे एक बार वापस ब्रीफ दे देता हूँ। सर एक मिनट सर, रेजिडेंशियल का टाइम पीरियड क्या होगा रिन्यूअल के लिए? 2 साल। रेजिडेंशियल का 2 इयर्स एंड गोल्डन वीसा 10 years. 10 इयर्स। थैंक यू। यस। राइट। सो ये आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो मतलब पुराना जो एयरपोर्ट है वो यहाँ है। ठीक है, ये आपकी मेन शेख जायद रोड है। जब आप इस पे JLT पे आते हो तो ये मतलब इससे पहले आपका ये पूरा डाउनटाउन और सारा लोकेशन यहाँ पर आ गया, ये आ गया आपकी JLT। तो अगर आप इसको देखोगे ये JLT, तो ये JLT, तो आप देख पा रहे हैं कि आज रोड उसके पीछे ये पूरा का पूरा, ये पूरा डेवलप्ड लोकेशन है, ये पूरा रेजाइड लोकेशन है जहाँ लोग रहते हैं। ठीक है, एंड आप इससे लेफ्ट में जाओ, ये जो मेरा हाइट है जहाँ पर लोग ऑलरेडी स्टैब्लिश हैं, लोग रह रहे हैं। सो ये पूरा सेटल लोकेशन के बीच में, ये जो लोकेशन है बिल्कुल सेटल लोकेशन है, यहाँ पे कुछ भी आप कमिंग नहीं है। जो 1-2 प्लॉट्स खाली हैं उन पे लोगों की नजर रहती है, जो इसमें से एक दनूब ने उठाया है। राइट, सो ये ऐसी लोकेशन है जहाँ पर डे 1 सब कुछ अवेलेबल है। JLT इज वेल एस्टैब्लिश्ड लोकेशन। सो जो फर्स्ट अलखेल रोड लिखा है भाई, थोड़ा सा जूम करना आप। अभी आपने जूम करा था फर्स्ट अलखेल रोड, ये अलखेल कोने वाला रोड, प्लॉट ही है अपना। ये बात हाँ। कहाँ, किस लोकेशन पे एग्जैक्ट? आप भाई अगर व्यूज 2 डालेंगे ना, व्यूज 1 या व्यूज 2, तो लोग एक बार आप डालना, मैं एग्जैक्ट प्लॉट भी बता देता हूँ आपको। नीतीश जी, आप इंडिया में रहते हो दुबई में रहते हो? मदिया जी मतलब 15 डेज दुबई और 15 डेज दिल्ली, ऐसा रहता है इनके पास पूरा नॉर्थ है। सो दिल्ली में कम होती है, दुबई में ज्यादा होती है। ये व्यूज बाय डैनी फर्स्ट, ये यहाँ पर ये हो गया व्यूज, है ना। हाँ व्यूज, थोड़ा जूम करना भाई। सो थोड़ा सा कर्सर राइट साइड ले जाएंगे ना आप, राइट, ये राइट वाला प्लॉट है भाई, कॉर्नर, ये नहीं, नीचे ये वाला? नीचे नीचे थोड़ा सा और राइट, नहीं, कर्सर सिर्फ ये प्लॉट वाला प्लॉट, इससे राइट लो थोड़ा सा। इससे राइट मतलब इधर हाँ नीचे आ जाओ आप, थोड़ा सा नीचे आ जाए, ये हाँ, लोकेशन। बस ये वाला प्लॉट है। हाँ ओके, ये वाला प्लॉट, राइट, कॉर्नर प्लॉट है। कॉर्नर यस प्लॉट है। यस, ये कॉर्नर प्लॉट, ठीक है। ठीक है ना। सो प्लॉट भी आप देख लो, बिल्कुल रोड पर है और कॉर्नर है, तो एडवांटेज मतलब अलखेल रोड पर है। यस, फर्स्ट अलखेल रोड। तो बेसिकली व्यूज 1 और व्यूज 2 की अगर बात करें प्रोजेक्ट की, उसमें हमारे पास जो व्यूज थे उसमें स्पेसिफिकली एक व्यू आपका अच्छा था या 2 व्यू आपके अच्छे थे, जिसकी तरफ लोग ज्यादा
मतलब फैसिनेट होते थे लेने के लिए। लेकिन जो हमारा ये वाला प्रोजेक्ट है इसमें स्पेसिफिकली ये है कि आपके 3 व्यूज ऐसे आ रहे हैं, वही 3 व्यूज रखे गए हैं जो आपको तीनों बिक जाएंगे आराम से, क्योंकि एक साइड में आपका पूरा जुमेरा आइलैंड व्यू दिखेगा आपको, दूसरे साइड से आपको जुमेरा लेक और सिटी व्यू पूरा जेएलटी का दिखेगा, और तीसरे साइड से अपटाउन जो टावर बने हुए हैं ऑलरेडी डेवलप्ड टावर्स हैं अपटाउन के, जो बाकी डेवलपर्स ने भी बनाए हैं वो भी दिखेंगे आपको, और वहां से आपका सी व्यू भी दिखेगा। सो कंपैरेटिवली ये वाला प्रोजेक्ट बेचने में ये आसानी होगी कि व्यू इसके 3 ही व्यूज हैं और तीनों व्यू अच्छे हैं। सो मोस्टली अगर बात करें तो इस प्रोजेक्ट का ब्रीफ दे दिया हाँ, दे। तो आपको ये आइडिया होगा, खासकर अभी प्रोजेक्ट के बारे में इन्होंने आपको बताया। अभी आप किसी भी कस्टमर को पिच करेंगे तो रिमेंबर 55 फ्लोर तक आपका टोटल स्टूडियो अपार्टमेंट्स अवेलेबल है। सो हमारी प्राइसिंग इसमें अगर 1.1 मिलियन टू 1.228 मिलियन की है, तो आप ये समझ के चलिए अगर आप किसी कस्टमर को ये बोलते हो कि आपको 50th फ्लोर पे चाहिए या 45th फ्लोर पे चाहिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप 1.1 में उसको 40th फ्लोर दोगे। हमारा 1.1 मिलियन में 12वां फ्लोर स्टार्ट होता है, क्योंकि 12th फ्लोर के नीचे नीचे हमारे पोडियम और वो सब एमिनिटीज वगैरह है, और पोडियम के ऊपर आपका 12th फ्लोर आपका फर्स्ट रेसिडेंशियल फ्लोर है, 12th फ्लोर टू 60 फ्लोर आपका रेसिडेंशियल है पूरा, 12 टू 31 फ्लोर रेसिडेंशियल है, 32nd फ्लोर मैकेनिकल है, 33rd फ्लोर टू 60th फ्लोर अगेन रेसिडेंशियल है सारा, 61 फ्लोर और 62 फ्लोर जो है उस पे सिर्फ एमिनिटीज है। इस प्रोजेक्ट में 42 एमिनिटीज है, जिसमें से 29 एमिनिटीज आपकी 12th फ्लोर पे है, और उसमें कुछ यूनिट्स बचे हुए हैं, कुछ यूनिट्स हैं। उसके बाद आपका 61 और 62 फ्लोर पे, 61 पे शायद 10 एमिनिटीज है, 62 पे आपके पास 4 एमिनिटीज है, और 61 62 आपका रेसिडेंशियल नहीं है, सिर्फ एमिनिटीज के लिए है। 62 के ऊपर आपका रूफटॉप आता है, रूफटॉप पे भी 3-4 एमिनिटीज हैं। सो बेसिकली 40 प्लस एमिनिटीज इस प्रोजेक्ट में। हमारा यूएसपी है कि हर प्रोजेक्ट में हमारे 40 प्लस एमिनिटीज होते हैं, और इसमें भी वही है। नाउ So, Madhya, do we have a complete brochure of this property? see, we have not yet received the brochure. We have only received the floor plan. Today is going to be the launch of this official launch of Diamonds by Danube. So by evening once launch हो जाएगा 7 बजे के बाद, तो आज शाम को ही हमारे पास ब्रोशर वगैरह सब आ जाएंगे। सो आपको ऐसा 20 दिरहम पर स्क्वायर फीट पर ईयर इसका सर्विस चार्ज है इस प्रोजेक्ट का, मेंटेनेंस कॉस्ट। मेंटेनेंस को। बस हाँ, Maintenance. ये बताना मत ज्यादा लोगों को, क्योंकि रीजन ये है कि इसका कंपेरेटिवली ज्यादा है सर्विस चार्जेस। तो आप अगर इस चीज को यूज करेंगे, कोई पूछता है तो ही बताना, नहीं पूछता है तो मत बताना। सो ठीक है, वैसे भी maintenance is a thing which is discussed over a possession time, not the launch time पे discussion होता नहीं। फॉर योर इन्फॉर्मेशन इट इज समथिंग यू मस्ट नो। बिल्कुल ठीक। बिकॉज अगर आपको पूछेगा या आपको नहीं पता होगा तो दैट्स नॉट करेक्ट। सो पता हो फिर घुमा सकते हो, ये 18 से 20 हो सकता है, बिल्कुल क्योंकि ठीक। अभी बिजनेस वो बेस वाला प्रोजेक्ट जो हमारा आया था उसमें हमारा 18 दिरहम पर स्क्वायर फीट पर ईयर था मेंटेनेंस कॉस्ट, इस वाले में 20 है। इसके बाद अगर आपका कोई कस्टमर बोलता है कि हमारा पहले था 34% पेमेंट अपफ्रंट करोगे तो 2% डिस्काउंट मिलता था, आज की डेट में अगर आप 34% पेमेंट करते हो डायमंड्स में अपफ्रंट, आपको 3% डिस्काउंट मिलेगा, 44% करोगे तो 4% मिलेगा, 54% करोगे तो 6% मिलेगा, और 104% करोगे तो 10% का आपको अपफ्रंट डिस्काउंट मिलेगा। Okay. So, is there anything you feel like you want to ask, or any queries you feel you have? We Ma'am, should. what will be the rate of super and covered area? Pardon? सुपर एंड Ma'am, कवर what is the ratio of super and covered area in this? See, there is no concept of super area there in Dubai. We are very clear with the concept of only having this covered area. और Okay. कार्पेट एरिया। सो इट्स लाइक वॉल टू वॉल जितना आपका यूज होगा। अभी आप स्टूडियो की बात करो, हमारा स्टूडियो अपार्टमेंट जो है वो 420 से लेके 450 स्क्वायर फीट का है, 524 524 यूनिट्स हमारे पास स्टूडियोज के अवेलेबल है, जिसमें से 86 यूनिट्स हमारे पास प्रेसिडेंशियल स्टूडियो है। सो अगर हम 86 प्रेसिडेंशियल स्टूडियो की बात करें तो प्रेसिडेंशियल स्टूडियो 470 स्क्वायर फीट के करीब का कार्पेट एरिया होगा। उन दोनों का स्क्वायर फीट सेम है। फ्लोर प्लान दिखाया इनको? मैं आपको फ्लोर प्लान ओपन करके बताऊं? मैं आपको हाँ, ओपन कर रहा हूँ फ्लोर प्लान। आप एक बार फ्लोर प्लान ओपन कीजिए, मैं बताती हूँ।
Yeah. और मैम इसमें ये भी बता दीजिए, जो ये मेंटेनेंस रहेगा वो उसी जो भी स्पेसिफिक एरिया होगा उस पर रहेगा। करेक्ट। देखिए अभी अगर फॉर एग्जांपल मेरा कोई स्क्वायर फीट 400 स्क्वायर फीट का कार्पेट एरिया है, तो 400 मल्टीप्लाइड बाई 20 कितना हुआ? 8000। मतलब 8000 दिरहम पर स्क्वायर फीट, 8000 दिरहम पूरे साल का आपका स्टूडियो year. अपार्टमेंट का मेंटेनेंस रहेगा पर ईयर, राइट। पर ईयर। फिर डिवाइड बाई 12 करोगे तो मंथली निकल जाएगा। वैसे दुबई में हम ईयरली या क्वार्टरली, सेमी एनुअली ऐसे करते हैं मेंटेनेंस भी पे। ओके। Hi, Madhya. So this is the floor plan. ओके, इफ भी आप थोड़ा सा नीचे वो स्क्रॉल कीजिए। हाँ बस बस इतना ही। वो इस पे थोड़ा ये जो लेआउट है बिल्डिंग लेआउट, उस पे थोड़ा जूम कीजिए। हाँ सो अगर आपने इस प्रोजेक्ट का देख रहे हैं, जैसे मैंने आपसे बोला, जो इसमें 3 व्यू है सिर्फ। जो मेरा आइलैंड व्यू, जिसमें आपको पूरा एंटायर आइलैंड का व्यू दिखाई देगा। नीचे वाले साइड से आपका एक ये ट्विन टावर है, और बीच में जो ये बनाया गया है ये आपका लिफ्ट है। 14 लिफ्ट, 12 लिफ्ट है इस प्रोजेक्ट में। ये आपका लिफ्ट है सारा। तो आपका टुवर्ड्स द लेफ्ट जो आपको लेक एंड सिटी व्यू दिख रहा है, इसमें आपको जेएलटी का जो आर्टिफिशियल लेक बनाया गया है वो व्यू दिखेगा, और एंटायर जेएलटी सिटी का व्यू दिखेगा। ठीक है। टुवर्ड्स द राइट अगेन मैंने आपसे बोला अपटाउन और सी व्यू है। जितने भी डेवलपर ने ऑलरेडी अपटाउन में बनाई गई है बिल्डिंग्स, वो आपको टावर्स दिखेंगे इसके। नाउ डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस के कलर चार्ट अलग अलग लगा हुआ है। जैसे स्टूडियो का कलर क्या होगा, 1 बेड, 2 बेड, 3 बेड, 4 बेड। नाउ विल गो, आप ऊपर उसकी ओर जाइए, 12 ऊपर थोड़ा लेफ्ट लेफ्ट ऊपर थोड़ा। ये देखिए, आप इधर देखेंगे 12th फ्लोर। इसमें आपका पहले तो 3 बेसमेंट प्लस ग्राउंड प्लस मैकेनिकल, देन टिल 11th फ्लोर आपका सब पोडियम और वो पार्किंग वार्किंग रहेगा। इस प्रोजेक्ट में आपकी 11 रिटेल शॉप्स है। ठीक है। 12th फ्लोर जो है आपका, उसमें आपकी 29 एमिनिटीज है। और ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं 4 5 6 7 8 येलो, ये जो आपको लाइट ग्रीन कलर के शेड, जो सी ग्रीन कलर के 11 12 13 14 15, ये सब आपके स्टूडियोज अवेलेबल है। 02 03 17 और 16 ये आपके 2 बेडरूम अपार्टमेंट्स है। ये 09 और 10 जो है लाइट ब्लू दिख रहा है, ये आपका 1 बेडरूम है। ठीक है। इसमें आपका 3 बेडरूम और 4 बेडरूम नहीं है 12th फ्लोर पे। 13th फ्लोर पे भी आप देखो, 12th फ्लोर में आपके कम यूनिट्स अवेलेबल है। 13 टू 31st फ्लोर में हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टूडियोज अवेलेबल है। अगर आप देखें 1 2 3 4 5 5 10 और यहाँ 1 2 3 4 5, मतलब इस एक फ्लोर पे 20 स्टूडियोज अवेलेबल है। तो अगर हम 13 फ्लोर 31st फ्लोर की बात करें, तो मैक्सिमम स्टूडियोज हमारे इस 13 टू 31st फ्लोर में अवेलेबल है। देन 02 01 15 16 32 31 17 18 आपका 1 बेडरूम है। कॉर्नर यूनिट्स अगेन आपके 2 बेडरूम के हैं। फिर आप 33 से 42 में जाएंगे, अगेन इसमें आपके स्टूडियोज कम हो जाएंगे। वहां आपके 20 स्टूडियोज पर यूनिट थे, यहाँ पे पर फ्लोर थे। यहाँ उसके बाद 33 टू 42 में आपके 8 यूनिट पर फ्लोर मिलेगा आपको स्टूडियो का। 2 बेडरूम ऑलमोस्ट, 1 बेडरूम ऑलमोस्ट सेम है। यहाँ भी 4 थे पहले वाले में, दूसरे में भी 4 थे। उसमें आपके पास 4 यूनिट्स थे अवेलेबल इस 2 बेडरूम के। इसमें आपके पास 8 यूनिट है। मतलब आपकी 2 बेडरूम, जितना आप ऊपर ऊपर जाओगे, आपके लोअर बजट की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कम कम होती जाएगी, और 2 बेडरूम 3 बेडरूम बढ़ता जाएगा। 43 से 55 फ्लोर पे बात करें, यहाँ पे आपका स्टूडियो बहुत कम हो जाते हैं, और 55 फ्लोर पे एंड हो जाता है स्टूडियो। इसके ऊपर स्टूडियो कोई अवेलेबल नहीं है। सो इसमें आपका स्टूडियो 1 बेड 2 बेड और 3 बेड के कॉन्फ़िगरेशन है। ये ग्रीन वाला जो डार्क ग्रीन है, ये आपका 3 बेड है। 03 8 18 और 13। इसके बाद 56 टू 59 की बात करें, तो आपका 3 बेड अवेलेबल नहीं है। इसमें आपका 1 बेड 2 बेड और 4 बेड है खाली। ठीक है। ये जो बीच वाले दिख रहे हैं 14 11 3 6, ये आपका 3 बेडरूम 4 बेडरूम अपार्टमेंट है। 60th फ्लोर की बात करें, अगेन आपके यूनिट्स कम हो जाते हैं, और इसमें 1 बेडरूम 2 बेडरूम 4 बेडरूम अवेलेबल है। ये बिल्डिंग लेआउट है। ये क्लियर हुआ? इसमें कोई क्वेश्चन पूछना है किसी को? Madam, 43 to 55 green or 4, right? 3 8 13 and Yeah, 3 18. 8 18 and 13 is going to be your 3 bedroom configuration. 3 bedroom, but total 4 bed 4 4 portions. units each floor.
4 units So each. if I tell you about there are 524 units available in studio. There are 320 plus unit available in 1 bedroom, 250 units almost available in 2 bedroom, 3 bedroom, they are all 54 in number, and then 4 bedroom are 20 in number. Then along with it, we have 11 retail shops in the project. So total we have around 1219 units available in the project. So now moving ahead to the studio apartment पे चलते हैं. So now if you see, ये आपका जो फ्लोर प्लान दिख रहा है, ये 12th फ्लोर पे आपकी 29 amenities अवेलेबल है. आप नीचे जाएंगे और थोड़ा नीचे नेक्स्ट पेज पे, हाँ, ये आपका amenities at level 61, उस पे कोई भी यूनिट अवेलेबल नहीं है. देन नीचे जाइए 62 लेवल पे, उस पे 10 यूनिट है, इसमें आपके पास 3 है 62 पे, और रूफटॉप पे शायद 4 है. आप नीचे जाइए, रूफ ये लेवल, हाँ इस पे 4 आपके पास. तो अब हम जाएंगे स्टूडियो अपार्टमेंट की कॉन्फ़िगरेशन पे. So at the height of 62 floors, there is a yoga deck, right? हाँ, तो इसमें एक फ्लोर की एलिवेशन लगभग 11.5 फीट की है. 11.5 फीट है, तो 11.5 फीट इंटू 62. 3.5 मीटर सेंटीमीटर में 3.37. हाँ मतलब अगर मोटी मोटी बात करें तो 11 इंटू 62 11.6 फीट का है. 700 फुट की हाइट पे योगा डेक है. तो दिस इज योर स्टूडियो अपार्टमेंट. ये जो शेड किए गए हुए साइड में आपको दिख रहे होंगे, ये आपके पास स्टूडियो की ये मतलब आपके पास कॉन्फ़िगरेशंस ये लेआउट की अवेलेबिलिटी होगी. इसमें आपका 407 to 420 स्क्वायर फीट ऑफ कार्पेट एरिया है. आप एंटर करेंगे, पैंट्री दिखेगी टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, आपका किचन है. किचन फुली लोडेड होगा और यूज ऐसे किया गया होगा कि आपके वॉल के अंदर सब कुछ ऑलरेडी मतलब ऐसे यूटिलाइज किया गया एरिया को कि आपका कोई भी फालतू यूज का कोई भी एरिया बचेगा ही नहीं. सब यूज ऐसे किया गया है सो दैट कि प्रॉपर यूजेज हो पर्टिकुलर हर एक स्पेस की. तो आप एंटर करके आपका राइट साइड में वो बाथरूम है, थोड़ा लिविंग स्पेस है, डाइनिंग स्पेस है और बेडरूम है. एंटर करते हुए आपका फिर लिविंग एरिया और रन थ्रू बैल्कनी है. अगर आप इसी स्टूडियो में ऊपर जाइए, इस स्टूडियो में सिर्फ 450 स्क्वायर या 470 स्क्वायर फीट का, आई थिंक जैसे मुझे याद है, हाँ 460 to 470 स्क्वायर फीट में आपका प्रेसिडेंशियल स्टूडियो होता है. सेम है स्टूडियो और ये प्रेसिडेंशियल स्टूडियो, फर्क कितना है कि बैल्कनी में पूल होगा और इसमें आपके पूल नॉर्मल स्टूडियो में आपका पूल नहीं होता. तो पूल के होने की वजह से आपका 20-30 स्क्वायर फीट बढ़ जाता है. तो ये आपका प्रेसिडेंशियल स्टूडियो हुआ. सेम एंटर करते हुए लेफ्ट में पैंट्री या बैल्कनी का साइज थोड़ा बड़ा होगा क्या? हाँ, बैल्कनी बढ़ जाएगी. आप यहाँ पे देखिए जो स्क्रीन में आपका दिख रहा है ना, ये आपका मीटर में दिया है. तो आपको उसको कन्वर्ट कर, आपके इंडिया के क्लाइंट को मोस्टली फीट में समझ आएगा, तो आप उसको कन्वर्ट करना है मल्टीप्लाई बाई 3.37 से, तो आपको फीट में आ जाएगा आपका. ठीक है, राइट मैम, थैंक यू. वेलकम. 7/11 के आसपास की बैल्कनी है. सो ऊपर जाइए, इस पे लिखा हुआ है ना, आप 1 मिनट नीचे जाइए, आप देखिए नीचे जाइए थोड़ा. इसमें प्रेसिडेंशियल स्टूडियो में बैल्कनी है 140 to 146. अब आप और नीचे जाइए. हाँ, बेसिक वाले स्टूडियो अपार्टमेंट पे जाना हमें तो. हाँ, यहाँ पे 89 to 93 है. तो Done. आपको जो स्क्वायर फीट की डिफरेंस दिखेगी वो आपको खुद दिखेगा, बैल्कनी में डिफरेंस है. हाँ, एक चीज, अगर आप कार्पेट एरिया में भी बात करते हो ना, दुबई में बैल्कनी कैलकुलेट होती है कार्पेट एरिया में, तो बैल्कनी ऐड करके ही जो 407 to 419 दिख रहा है वो बैल्कनी में ऐड करके ही होगा. ठीक है, अब हम फर्स्ट 1 बेडरूम पे चलते हैं. ये आपका 1 बेडरूम अपार्टमेंट है. आप एंटर करते हुए लेफ्ट साइड में आपका किचन है, राइट साइड में पाउडर रूम है. एंटर करते हुए 1 बेडरूम में ऑफिस स्पेस दी गई है, लिविंग एरिया, डाइनिंग एरिया, एक मास्टर बेडरूम, ड्रेस रूम और उसके साथ अटैच्ड वॉशरूम है. बैल्कनी भी साथ में. आप देखिए 733 to 753 स्क्वायर फीट ऑफ कार्पेट एरिया है. बैल्कनी आपकी 150 स्क्वायर फीट की है ऑलमोस्ट. तो ये अगर आप इसी में बैल्कनी में एक प्राइवेट पूल ऐड कर देते हो तो आपका प्रेसिडेंशियल सूट बन जाता है. ये देखिए, सो इसमें आपको ऑफिस स्पेस भी दिया और पूल. अब इसमें स्क्वायर फीट में ज्यादा फर्क नहीं है.
इसका 740 to 751 है, उसका भी ऑलमोस्ट यही है, तो इसमें स्क्वायर फीट की फर्क नहीं होगी। ये देखिए सेम है ना दोनों का, तो स्क्वायर फीट की फर्क नहीं होगी, इसमें सिर्फ एडिशन पूल का होगा। तो जो अगर आप एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हो इसका, वो सिर्फ पूल का दे रहे हो, स्क्वायर फीट बराबर है दोनों के। ये आपका 2 बेडरूम 3 बेडरूम 4 बेडरूम में बाय डिफॉल्ट पूल है। स्टूडियो और 1 बेडरूम में आपके पास ऑप्शन होते हैं कि आप पूल रख सकते हो, नहीं भी रख सकते हो, लेकिन उसमें आपके पास ऑप्शन नहीं है, उसमें बाय डिफॉल्ट आपके पास पूल होना ही होना चाहिए, ठीक है। सो 2 बेडरूम आप एंटर करते हुए लिविंग एरिया, डाइनिंग एरिया, वॉशरूम, पाउडर रूम सब सेम होता है, बस इतनी फर्क होती है। 1 बेडरूम में एक मास्टर बेडरूम होता है, 2 बेडरूम में 2 होते हैं, 3 बेडरूम में 3 होते हैं, 4 बेडरूम में 4 होते हैं। स्क्वायर फीट बढ़ जाते हैं, रूम्स बढ़ जाते हैं, लिविंग एरिया, डाइनिंग एरिया, पाउडर रूम, इन सब किचन का कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट सेम रहता है। अब 2 बेडरूम के 2 टाइप है, टाइप ए और टाइप बी। टाइप ए जो है वो ऑलमोस्ट 1100 स्क्वायर फीट का है, जिसमें किचन ओपन किचन कॉन्सेप्ट है। लेकिन अगर आप 2 बेडरूम टाइप बी में जाएं, वो बड़ा है, 1250 स्क्वायर फीट से लेके 1270 स्क्वायर फीट का। इसमें आपका पूल और कन्वर्टेबल किचन है। कन्वर्टेबल किचन का मतलब कवर्ड किचन, जिसमें आपका किचन बंद होगा। कोई कस्टमर आपका ऐसा होगा जो ये बोलेगा आपको कि मेरे को किचन खुला नहीं होना चाहिए। कोई बोलता है कि चलेगा, मेरे को दुबई में कॉन्सेप्ट है किचन ओपन हो सकता है, लेकिन कुछ इंडियन क्लाइंट्स ऐसे हैं जिनको पसंद नहीं है कि वो ओपन किचन कॉन्सेप्ट पसंद नहीं है, तो उनके लिए दे कैन गो फॉर 2 बेडरूम टाइप बी। इट्स अ बड़ा वाला भी है तो ये ज्यादा महंगा होगा। सो 3 बेडरूम का एक टाइप है, 4 बेडरूम का एक टाइप है। 3 बेडरूम ऑलमोस्ट 1500 स्क्वायर फीट से लेके 1520 स्क्वायर फीट का है, जिसमें 3 मास्टर बेडरूम हो गए, तीनों की बैल्कनी रन थ्रू करती है, मतलब आपका एक्सेसिबल है पूल फ्रॉम मास्टर बेडरूम, 1 बेडरूम, 2nd बेडरूम, 3rd बेडरूम, लिविंग एरिया, सबकी तरफ से आपको एक्सेसिबिलिटी है टुवर्ड्स पूल। बट विजिबिलिटी ऑफ पूल ज्यादा बेटर व्यू देगी आपको इससे, क्या बोलते हैं इसको, मास्टर बेडरूम से। सो इसमें आपका एक मेड रूम एडेड है, आपका कन्वर्टेबल कवर्ड किचन है, और आपका पूल इसमें है ही है। सो लेट्स गो मूव टू 4 बेडरूम। हाँ रिमेम्बर, एक नीचे जाएं आप वापस, 3 बेडरूम में अगर आप चेक करें, यहाँ नीचे जो इसका लेआउट दिया गया है बिल्डिंग का, इसके साथ इसमें लिखा गया है 43 to 55। डैन्यूब में अभी तक कोई भी लेआउट बना होता है उसमें कभी लिखा नहीं होता था, इस बार इन्होंने लिखा है कि किस फ्लोर से लेके कहाँ तक आपको ये वाला लेआउट दिखेगा। सो 3 बेडरूम के लेआउट सिर्फ एक ही लेआउट है और अवेलेबल है 43 से लेके 55 फ्लोर तक का। सो 4 बेडरूम आपका ऑलमोस्ट 1959 to 1973 स्क्वायर फीट का है, ऑलमोस्ट 2000 स्क्वायर फीट का। इसमें आपका 4 बेडरूम हो गए, 1 मास्टर बेडरूम विल हैव एक्सेसिबिलिटी टुवर्ड्स, एक्चुअली एक्सेसिबिलिटी सबकी तरफ है, बट विजिबिलिटी ज्यादा मास्टर बेडरूम की तरफ होगी। इसमें आपका कन्वर्टेबल कवर्ड किचन होगा, मेड रूम होगा, और पूल इसमें है ही है। बैल्कनी देखिए कितनी बड़ी है इसमें, ये स्टूडियो अपार्टमेंट में जितना हमारा स्टूडियो अपार्टमेंट है उतनी इसमें बैल्कनी है खाली। सो ये है हमारा स्टूडियो 1 बेड 2 बेड 3 बेड 4 बेड की कॉन्फ़िगरेशन। फ्लोर प्लान सबको समझ आ गया? कोई क्वेश्चन करना है फ्लोर प्लान के लिए? I think this is like basic thing, सबको समझ आया होगा। मैंने आपको बेसिक्स बता दिया। आई थिंक इसके बाद आप अगर फ्लोर प्लान खुद भी पढ़ के देखोगे ना, तो आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, तो ये आप लोग देख कर ही हो जाएगा। सो इसके बाद प्राइजेस ऑल्सो आपको पता होगी, प्राइजेस कितनी है वो हमने ऑलरेडी आपको ग्रुप पे डाल दिया। अब ये याद रखना, कोई भी फ्लोर चूज करते हो तो प्राइजेस मिनिमम फ्लोर की मैक्सिमम प्राइस, सॉरी मैक्सिमम प्राइसिंग पे मैक्सिमम फ्लोर का कॉन्सेप्ट होगा। ऐसा कॉन्सेप्ट मत लेना मिनिमम प्राइसिंग हाईएस्ट फ्लोर, ऐसा कोई भी यूनिट नहीं मिलेगा। ईओआई जो आप डैन्यूब को अभी दे रहे हो, दैट डजंट मीन कि आपका पेमेंट जो है वो जो भी अमाउंट प्राइस होगा वो ईओआई पे बेस्ड नहीं होता कि जितना पहले दोगे उतना सस्ता मिलेगा। जितना पहले दोगे उतना अच्छा यूनिट मिलेगा। लोअर फ्लोर में स्टार्टिंग प्राइस चाहिए होगा तो वो मिल सकता है, लेकिन हाईएस्ट फ्लोर पे कम प्राइस का नहीं मिलेगा। तो इस कॉन्सेप्ट को बहुत क्लियर रखना, किसी भी कस्टमर को आप कुछ ऐसा वैसा नहीं बोलना जिसकी वजह से यूनिट में पैसा आने के बाद वापस देना पड़े हमें, ठीक है? I think we have cleared maximum of the things. If there is anything you want to ask, please ask me. If have we skipped anything else or it's done? We have covered everything. So is there any other question? I believe
अमित एक क्वेश्चन है। प्लीज सुमित भाई, मैं वेट कर रहा था आपका। अर्लियर जो एक क्लास मीटिंग हुई थी, जो इनिशियल डनअप की हुई थी मीटिंग, उसमें ये बताया गया था कि इवन इफ कस्टमर विश टू पे द एंटायर अमाउंट, वो भी एस्क्रो अकाउंट में चला जाएगा तो कोई फायदा नहीं होता। बट अभी मैडम वाज सेइंग समथिंग अबाउट डिस्काउंट परसेंटेज। राइट। सो इसको थोड़ा मधिया, क्लैरिटी दे सकते हैं? मधिया एक्चुअली क्वेश्चन क्या है? what happened मधिया, अभी जो लास्ट ट्रेनिंग हुई थी that is done by Nargis from South India location, right? So उन्होंने ये बताया था कि अगर डाउन पेमेंट प्लान अगर कोई चूज करता है या मैक्सिमम पेमेंट भी अगर चूज करता है, there is no discounting from Danu, right? जैसे अभी आपने नहीं बताया है। कि 34 50 44 54 ये तो उसको डायमंड डिस्काउंटिंग है, ये हमारा डायमंड का इन लोगों ऑफर ने है। ये ऑफर भी है, और ऐसा नहीं होता है। हम कस्टमर्स को बोलते हैं, डैन्यूब की पॉलिसी नहीं है डिस्काउंट की। Okay. अगर आप मेरे पास 14% की पेमेंट लेके आओ और मुझे बोल रहे हो कि आप मुझे डिस्काउंट दो, मेरे पास 0% डिस्काउंट है। और आपको लोग ऐसे मार्केट में मिलेंगे जो आपको मुझे वो एक कस्टमर है वो 50 लोगों के पास जाता है, राइट? तो आप आपके पास जाएगा तो बोलेगा मुझे डैन्यूब 1 करोड़ की प्रॉपर्टी 90 लाख में दे रहा है। किसी और ब्रोकर के पास जाएगा तो 85 बोलेगा, किसी तीसरे के पास जाएगा आपको लगेगा डैन्यूब डिस्काउंट दे रहा है। डैन्यूब डिस्काउंट नहीं देता है। ये हमेशा एक चैनल पार्टनर होता है, वो अपने पार्ट से प्ले करता है कि वो क्या कमीशन ले रहा है वो उससे देता है, लेकिन डैन्यूब वो एक डिस्काउंट नहीं देता है। डिस्काउंटिंग, वो तो एक डिस्काउंटिंग एक अलग चीज है, दैट्स अ पार्ट ऑफ हाँ, मैं नेगोशिएशन। आपको ये समझा रही हूँ, डैन्यूब डिस्काउंट वो बिल्कुल चीज ठीक। में नहीं देता है, डाउन लेकिन पेमेंट पे अपफ्रंट क्या पेमेंट में डिस्काउंट? डिस्काउंट है। डाउन अपफ्रंट पेमेंट में पेमेंट ऑन बेसिस ऑफ अप्रूवल, इफ यू टेल मी, कोई भी क्लाइंट आपके पास आएगा, आप मुझे बोलोगे आई विल गेट अ अप्रूवल एंड आई विल गिव द डिस्काउंट, बिकॉज वंस वी गॉट द ट्रेनिंग अभी डायमंड्स की, वी हैव बीन इन्फॉर्म्ड बाय द मैनेजमेंट ओनली अबाउट दिस कि डाउन पेमेंट में क्या क्या बेनिफिट्स तो मिलेगा। मिनिमम इज लाइक 34% अगर कोई पे करता है तो वी कैन गिव 3% डिस्काउंट हमें एंड पहले रिस्पेक्टिवली हमारे वी कैन पास डू दैट। आई थिंक नरगिस को शायद बोलने में कुछ मतलब मे बी समझने में या कुछ बोलने में रहा होगा, अदरवाइज बेस पे भी हमारा 32%। Maria, sorry to interrupt here, but Nargis was talking about RERA and referring to RERA, she said कि वहाँ पे कोई भी अमाउंट जो जाएगा अगर एक्स्ट्रा अमाउंट होता है तो वो एस्क्रो अकाउंट में ही जाता है, and she was referring connecting it to RERA strategy over there No, in it's not Dubai. important. It depends upon you. We get the escrow account for our customers, but it depends upon you whether you want to deposit the money in the escrow account or you want to deposit the money in the Danube का खुद का account, corporate account. So ये depend करता है। कुछ डेवलपर्स लेते भी है, मतलब जैसे हमारा एस्क्रो अकाउंट है, मैक्सिमम पेमेंट एस्क्रो अकाउंट में लेते हैं, लेकिन कुछ पेमेंट हम लोग एस्क्रो अकाउंट में नहीं लेते हैं, कुछ पेमेंट हम डायरेक्टली डैन्यूब के कंपनी अकाउंट में भी, कॉर्पोरेट अकाउंट में भी लेते हैं। सो बाय एनी चांस आप पेमेंट उसमें करो या इसमें करो, आपके जेब से तो जा रहा है ना, चाहे वो एस्क्रो में जाए, वो कंपनी को फायदा हो या ना हो, वो कंपनी की प्रॉब्लम है। हमको कंपनी ने बोला है कि आप पैसा डाउन पेमेंट आ रहा है, हम डिस्काउंट देंगे, सो वो किस में भी जाए वो कंपनी की प्रॉब्लम है, बाद में हमें उसके साथ मतलब नहीं है। सो दैट मीन्स यू वांट टू से दैट कि अगर कोई कस्टमर ने पेमेंट चाहे वो एस्क्रो अकाउंट में करे चाहे वो आपको करे, अगर वो डाउन किसी पेमेंट में कर भी रहा है तो वी करे, विल गेट द बेनिफिट, राइट? किसी में भी करे वो, उससे मतलब नहीं है, वी विल गेट द बेनिफिट। ओके, ठीक है, ओके। एनीथिंग एल्स, एनी अदर क्वेश्चन? डू यू वांट टू एड्रेस समथिंग? संकेत भाई, एनी क्वेश्चन? we have to lock every customer, मैडम। लीड लॉक करना है क्या? हाँ जी, लीड रजिस्ट्रेशन करना है विदाउट कोई भी क्लाइंट अगर आपका चल रहा है उसको आज ही रजिस्ट्रेशन कर लो, इससे पहले कि ये कोई और बहुत रजिस्ट्रेशन कर ले। ये बहुत इंपॉर्टेंट दिस इज वेरी फैक्टर है इंपॉर्टेंट। अमित हम भाई। ऑलरेडी हाँ, ये बहुत ऐसे एक दो इंपॉर्टेंट केसेस है। में ऑलरेडी नुकसान खा हमने चुके बहुत हैं, को झेला है। हम ऑलरेडी ऐसे केसेस झेल चुके हैं। अमित सो भाई ने और इफ मैंने यू बहुत हैव को झेला है। इफ यू हैव एनी क्लाइंट हु इज इंटरेस्टेड, आपको लगता है कि यार ठीक है आज से 5 दिन बाद इंटरेस्ट होगा, उसको आज रजिस्टर करा लो। 5 दिन बाद होगा नहीं होगा वो एक अलग बात है, बट रजिस्टर क्या करा होता लो। है कि कभी कभी एक कस्टमर इतना स्मार्ट प्ले करता है कि आपको भी, आपसे भी क्वेश्चन करेगा, फिर डैन्यूब में भी इंक्वायरी करेगा। अगर आपने रजिस्टर नहीं किया होगा तो मैं क्या करूंगी, मेरे पास डायरेक्ट लीड आएगी तो मैं खुद करूंगी ना, मुझे क्या मालूम आप किससे काम बात कर रहे हो। बिल्कुल ठीक है। इसलिए अपनी लीड को रजिस्टर कराइए। अभी हमारे पास हुआ था एक, हमने इवेंट किया था, उस कस्टमर ने बुकिंग यहाँ पे भी करी और उसके बाद दूसरे इवेंट के लिए दूसरे में इंक्वायरी की थी और एक यूनिट पे, बट लकीली मैंने वो लीड रजिस्टर कराई थी तो उसी चैनल पार्टनर को वापस दे दी। अगर मुझे नहीं पता होती तो वो लीड मिलती नहीं उनको, कस्टमर को, ये सॉरी चैनल पार्टनर को मिलती नहीं वो। सो ये कॉन्सेप्ट। अमित भाई, कहाँ पे रजिस्ट्रेशन कहाँ पे होता है? दानूब पे होता है? भाई मेल पर हो जाएगा, आप जो भी क्लाइंट हो आप मुझे शेयर करना, मैं मेल पे उसको रजिस्टर वो करा अमित भाई वो अमित भाई आपको बता देंगे क्या इफेक्ट वो Process. प्रोसेस बता तो दीजिएगा। एक नाम से रजिस्टर होता है, एक नाम से जाके उनसे मिल रहा है सर। और वो इनको बता देंगे, इनको तो पता है प्रोसेस।
Anything else we can help you with? Any question? Please feel free to ask any question. We are there on the group. अगर कुछ भी संकेत भाई question प्लीज होगा, पूछो। कोई भी चीज है, Small thing. This is a small thing for my knowledge and reference. Since we'll be working in India territory and we'll be having clients from India, so will there be any nearby good catchment which we can refer to the people, you know, कि ये जो location है इसके आसपास कुछ Indians के लिए specific catchments है? Like it could be a eatery, it can be an entertainment thing which they can connect to easily. हमारी इस लोकेशन के आसपास कुछ कैचमेंट ऐसा है जो we can like refer to our clients in India. अच्छा ये आप बोल रहे हो कि हमारी JLT अपटाउन की लोकेशन के Correct, इर्द गिर्द correct. कुछ क्या? हाँ देखिए, जुमेरा आइलैंड वो ही सबसे बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है, मरीना, मरीना है, JBR, JBR है, ये सब पाम जुमेरा, ये सब जो एरियाज है ना, ये आपके इर्द गिर्द विसिनिटी में है, जिसको आप रेफर करके बोल सकते हो कि इस एरिया से हमारा प्रोजेक्ट इतना दूर है। और JLT जुमेरा लेक टावर्स के अंदर अपटाउन है, JLT अपटाउन। JLT अपटाउन इज वन ऑफ द बेस्ट पर्टिकुलर रीजन और अ प्लेस इन दुबई, जो वन ऑफ द नोन प्लेस है जहां पे हर दिन 11 से 13 कंपनीज रजिस्टर करती है। हर नए दिन 11 से 13 न्यू कंपनीज गेट रजिस्टर्ड इन JLT। फर्स्ट थिंग, टोटल दुबई की इकोनॉमी की अगर बात करें और GDP जिधर से दुबई का मतलब बढ़ता है, 65% इकोनॉमी JLT से आ रही है, उसका 9.65 GDP है, इस एरिया से आ रहा है पूरा दुबई के अंदर। तो ये एरिया कंपैरेटिवली बहुत ही बेटर है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको बेनिफिट होगी और हम आपको लिख के भी देंगे, बताएंगे। आप सबसे अच्छा क्या किया कीजिए, जब भी आप गूगल अर्थ ओपन करेंगे ना, उस पे आप लोकेशन पे नाम लिखेंगे डायमंड्स बाय डेन्यूब, बिल्कुल कॉर्नर प्लॉट है। जब आप गूगल अर्थ ओपन करेंगे ना, आपको खुद ब खुद चीजें नजर दिखाई देंगी जो आप रेफर कर सकते हैं। मैंने आपको बता दिया, JLT में JBR, मरीना, ये तो ऐसी जगह है जो एनीवन इन एंटायर वर्ल्ड नोज कि मरीना है, JLT है, ये सब एरियाज दुबई मरीना बहुत फेमस है। आप दुबई मरीना कहें तो नॉन है लोग उससे, या आप बिजनेस भी कहें। सो ये लोकेशंस बहुत प्राइम लोकेशंस में आती है दुबई में। तो अगर कोई पूछता है तो सीधा आपने बोलना है दुबई मरीना के जस्ट बगल में है, जस्ट अपोजिट साइड, दैट्स इट। And because these flats, apartments are furnished, right? Fully furnished, yeah. Only Fully fully pre-launch. furnished until pre-launch। अगर जब प्रॉपर्टी लॉन्च हो जाएगी उसके बाद आपको किचन लोडेड मिलेगा, लेकिन आपका मतलब किचन लोडेड का मतलब माइक्रोवेव, ओवन, रेफ्रिजरेटर, बर्नर, ये सब मिलेगा, लेकिन मूवेबल फर्नीचर्स लाइक सोफा, बेड, ये सब नहीं मिलेगा। फिर उसके लिए आपको एडिशनल कॉस्ट पे करनी पड़ती है, 10-12 लाख की स्टूडियो के लिए, 1 बेड के लिए 15-16 लाख, 20 लाख 2 बेडरूम, ऐसे लमसम वो डिपेंड करता है। मोस्टली हम लोग कोशिश करते हैं, हम लोग सोल्ड आउट, वी गेट सोल्ड आउट इन द प्री लॉन्च ओनली। सो हम लोग वहां तक रखते नहीं, हम भी कोशिश करते हैं ज्यादा। अभी आप ये समझ के चलो 1 महीना आपको अच्छा खासा मेहनत करना है, इसी महीने में आपको रिजल्ट निकलेगा। फिर उसके बाद कूड़ा बचा होता है, वैसा बेचना होता है, वो कॉन्सेप्ट समझ के चलो आप। सॉरी मैडम, आई डिडंट गेट यू। प्री लॉन्च का टाइम पे ये पूरा नहीं मिलेगा, अगर अभी बुक कर रहे तो मिलेगा नहीं। प्री लॉन्च जब तक प्रॉपर्टी लॉन्च हो जाएगी ना, अभी प्री लॉन्च चल रहा है, आज प्री लॉन्च शुरू होगा, नेक्स्ट 1 मंथ के अंदर मतलब विद इन 1 मंथ ओनली यू विल हैव एन ऑप्शन ऑफ गेटिंग फुली फर्निश्ड अपार्टमेंट वेयर यू हैव माइक्रोवेव, ओवन, रेफ्रिजरेटर, बर्नर, बेड, TV, सोफा, sorry TV is not there, television is not there, rest like you have to carry your suitcase. Yeah, only plug and play. It's going to Plug be and there. And all this is inclusive in the prices mentioned, right? Yes. Yeah, see, company is giving you it I mean free of cost. Even if tomorrow you have the same pricing, but you have to pay additional cost for the this furnishing. Okay. For example, the property price right now for a studio apartment is going to be 2.5 CR. It is inclusive of furnishing and all whatever you have to pay. Tomorrow it's going to be 2.5 CR plus 10 lakh, 20 lakh. That's the thing which you have to pay. Okay. Right now you don't need to pay anything. Okay. Can you talk about the parking? I mean, is there any park? I mean, do we have parking and how many Yeah, cars for can they have? studio, 1 bed, 2 bed, you have 1 parking available. Then for 4 bed,
Sorry, for one studio 1, 2, and 3 bed, you have 1 parking, and for 4 bed, you have 2 parking, and there's a ramp parking. So for studios, 1 bed, 2 bed, and 3 beds, you'll only get 1 parking and 1 guest parking would be there. But specifically with your apartment, it's going to be 1 parking only. For Okay. 4 And it's bedroom, paid. only 2 parking is there. Okay. It's paid parking, right? Like it's already paid in the price. Yeah, you don't have to pay anything additional. See, whatever costing would be given to you, other than that, you have to only pay 4% to the developer for the registration, Dubai Land Department, and 1092, that is somewhere around 24,000 INR for the documentation or the legal fee which you need to pay for the paperwork. That's it, 4%. That too, one time you have to pay 4% plus 1092. Rest, nothing you have to pay. And also, since it's a soft launch, I just want to confirm: do we have an ERA? Company got their ERA for this project, right? For this, when we do the soft launch, we get the see, for this we've already got the approval for diamonds. So last time, like for a previous project, it used to happen like we used to pre-launch, and then maybe within 1 month or 1.5 months, 2 months, we used to get the RERA number and all. But for this, it's already approved because it was like Okay. since long back they wanted to get the project launched. But however, this got little delayed. That's why we already have the approval for this. Yet we don't have the RERA number with us, but it's already approved. We have got the approvals like, with the management. So this project will not take that much of time to get launched and all. Done. Anything else? Any other question? Yeah, one last question I have here. Like you have been selling Dubai for quite some time. So usually, what kind of percentage Indians buy property in Dubai? See, And I'll what, tell you the which is the highest other? number. Yeah, Hmm? tell me. And which is the other country or Dubai local people are buying the property there? See, if you talk about the particular area, in total 16% of the Arab Emiratis are living there in Dubai who are buying properties, investing in properties or for their own purpose. Rest of the population is other foreigners who are buying properties there in Dubai. Out of which it was said 60% of the population is of India who buys property there in Dubai for investment mostly. Then second for end users. Mostly other than the Indians, we have Pakistanis, we have Russians, Philippines, people of Philippines, they also buy property there in Dubai. Canada, US, everywhere people are buying. Even I have clients who are staying there in Canada, US, who are Indians but are buying from there only. So maximum majority of the people are Indians who are buying there in Dubai. Okay, thank you. Anything else? Any other question, please? I think all questions are answers. And thank you so much, Madhya. Welcome. I believe we can close the session now and we can pick some bookings.